हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस का, जिसमें करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यानी देखा जाए तो इतिहास का दूसरा चैप्टर जो है 9th क्लास के बच्चों के लिए यूरोप में समाजवाद एवं रूस क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। जो बच्चे करना चाहते हैं, अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ये वीडियो के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो कई मायने में जो है उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा और अच्छे अंक प्राप्त एग्ज़ाम में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन हमारा आज क्या है। द फर्स्ट important question arrive here that what was the impact of industrial society on the social life of the people? There is the most important question, and here same question: what a social change can be seen in a society after industrialization? There is the most important question here. Two questions same, but there is the answer is the same. Okay. What was the impact of industrial society on the social life of the people, and what social change can be seen in society after industrialization? The answer here: the industrialization both man, women and children to the factory. There is the industrialization. The first impact here: a man, women, children is go to the factories and working. And here, second point, work hours were often is long, but wage is a very poor. The work hour is very long, and wage where is very poor. And third point here show here, unemployment was a common. This time revolution, the unemployment was a common, and particularly during the time of low demand for the industrial good. There is a most important point here: the low demand for the industrial good, because their causing of the unemployment was a common, and there is a problem create the effect of the work hours is very long but wage is very poor. And housing sanitation, where is the problem seen to the town were growing rapidly. The housing and sanitation were a problem seen of towns were growing rapidly, and liberals and radicals is the research for a solution to this issue. There is a liberals and radicals is a search for this solution to be this issue. The next point here, almost all industry were a properties of individual. There is a important, almost all the industry were a properties of individuals. And the next point, many liberal and radical themselves were often property of owner and employers. That is important. Many liberals and radicals themselves were often is a property of owner and employers. And there are next year 8 point. So it was a time when the new cities come up, a new industrial regionals and development. The railway expanded and industrial revolution happened. There is a important question for the exam view. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, लोगों को सामाजिक जीवन पर औद्योगिक समाज का क्या प्रभाव पड़ा और औद्योगिकरण के बाद समाज में कौन से सामाजिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, कहते हैं कोई भी इसमें अंतर नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन ही बनाता है। इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन जो है उठाए हैं कि आंसर सब इनका एक ही है, लेकिन क्वेश्चन आपको लगता है कि डिफरेंट है। डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझने की यहाँ पर आवश्यकता है कि लोगों के सामाजिक जीवन पर औद्योगिक समाज का क्या प्रभाव पड़ा। जब औद्योगिक आया तो कहते हैं सामाजिक जीवन में जो है क्या प्रभाव पड़ा। अगर यही बात दूसरे क्वेश्चन में हम देखें कि औद्योगिकरण के बाद समाज में कौन से सामाजिक परिवर्तन देखे जा सकते थे, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी इसका सेम होगा। अब सोच रहे होगे कि मैं क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि आपको आंसर याद हो जाएगा, आप रटो चाहे याद करो, जैसे मर्जी करो, क्वेश्चन तो आपको ये आंसर तो याद हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन ही याद नहीं रहेगा कि क्वेश्चन में था क्या और किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में बता दूँ मैं कि लोगों को सामाजिक जीवन पर औद्योगिक समाज का क्या प्रभाव पड़ा या औद्योगिकरण के बाद
जो है वहाँ पर रेवोल्यूशन के जो हुआ और औद्योगिकरण हुआ, तो वहाँ पर जो है सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो ये दोनों क्वेश्चन कई मानने में अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। कहते हैं दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आंसर तो इसका एक ही है। तो आंसर के रूप में आप ये लिख सकते हो कि औद्योगिकरण ने पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को जो है कारखानों में लाया। यानी देखा जाए तो औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को जो है कारखानों में लाके रख दिया। आखिर ये बच्चों, देखिए इस समय ये स्थिति पैदा थी कि लोग न चाह के भी जो है वो कारखानों में काम करने के लिए विवश थे। कारण क्या था, इसका कारण था तीसरा पॉइंट कि बेरोजगारी उस समय आम थी, खासकर औद्योगिक वस्तुओं की जो है कम मांगों के समय। देखिए कहते हैं वहाँ पर बेरोजगारी आम थी, यानी हर एक दूसरा व्यक्ति जो था बेरोजगार था। कारण क्या था, फैक्ट्री में सामान तो बन रही थी बट इसको जो है बाहर देश में सप्लाई नहीं हो रहा था, बिक नहीं रहा था, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती ही चली जा रही थी। अगर हम दूसरे पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें तो ये बात साफ हो जाता है कि काम के घंटे अक्सर लंबे होते थे और मजदूरी कम दी जाती थी। अब देखिए इसका कारण क्या बनता है कि अगर बेरोजगारी आम रही होगी तो लोग अगर काम करना भी चाहते थे तो एक जगह पर जो है अगर एक काम है तो कई व्यक्ति उस काम में लगे रहते थे। उस काम पाने के लिए कई व्यक्ति जो है होड़ में लगे रहते थे। तो मान लीजिए कोई जो होगा, बड़े साहूकार जो होगा, वो किसको काम देगा, जो कम पैसे लेता हो उसी को देगा ना। इसी कारण से जो था वहाँ पर जो है मजबूरन कई घंटे तक लोग काम करते रहते थे, लेकिन पैसा जो होता था बहुत ही कम मिलता था। कारण क्या था, कारण ये था कि फैक्ट्री में सामान तो बन रही थी लेकिन इसका जो है विदेशों में सप्लाई होना बंद हो गया था। और क्यों हुआ, क्योंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी। अगर आपको पता होगा तो ये प्रथम विश्व युद्ध के इफेक्ट जो था इनके उद्योग पे भी पड़ा। तो आप समझ गए, तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को कारखानों में लाके पटक दिया। ठीक है, उसके लिए कारण क्या हुआ, उनको कामों के घंटों में बहुत ही बदलाव किया गया, अधिक अधिक घंटे काम करवाए जाते थे, लेकिन जो है वेज यानी पैसे, तनख्वाह बहुत ही कम दिया करते थे। और इसके कारण क्या था कि उस क्षेत्र में, उस जगह पे, ठीक है, रशिया में जो है बेरोजगारी आम थी। ठीक है, हर एक दूसरा व्यक्ति जो था बेरोजगार था, खासकर औद्योगिक वस्तुओं की मांग कम के समय। और इसके कारण क्या हुआ, औद्योगिकरण, देखिए कहीं भी औद्योगिकरण होता है तो शहरीकरण होना तो स्वाभाविक बात हो जाती है। अगर उद्योग स्थापित होती है तो लोगों के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर मकान बना दी जाती है, ठीक है, उनका रहन सहन की व्यवस्था की जाती है। तो इससे क्या हुआ, आवास और स्वच्छता समस्या आम बन गई वहाँ पर, क्योंकि नगर तेज़ी से विकसित हो रहे थे। नगर का विकास होने के कारण क्या हुआ कि वहाँ पर आवास की प्रॉब्लम और स्वच्छता की प्रॉब्लम बढ़ती ही चली गई। आपने देखा भी होगा कोई एरिया साफ़ सुथरा रहता है अगर वहाँ पर कम आबादी हो, अगर वही आबादी बढ़ जाती है तो कहते हैं पोल्यूशन, गंदगी भी काफ़ी बढ़ जाती है। आगे पॉइंट है, लेकिन देखा जाए तो ये सारे कंडीशन को जो है समाधान करने के लिए उदारवादी और कट्टरपंथियों ने बेशकली बहुत ही प्रयत्न किया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो लिबरल पार्टी के जो व्यक्ति थे और कट्टरपंथी के लोग थे, उन्होंने इस मुद्दे के समाधान के लिए हर संभव कोशिश किया, बट ये समाधान नहीं हो सका। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत की संपत्ति थे, क्योंकि सारे के सारे उद्योग जो थे एक व्यक्तिगत हो गया था। सारे के सारे उद्योग जो दोस्तों थे व्यक्तिगत हो गए। आप सोच रहे हो कि व्यक्तिगत का अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत का अर्थ होता है यहाँ सरकार का कोई यहाँ पर रोल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो है स्वयं ही फैक्ट्री लगाया है, उसे हम इंडिविजुअल कहते हैं। यानी देखा जाए तो सबके सब जो थे उद्योग जो थे व्यक्तिगत बना दिया गया था। कई उदारवादी और कट्टरपंथी स्वयं अक्सर संपत्ति के मालिक और नियोक्ता होते थे। यानी कट्टरपंथी और उदारवादी के हाथों में सारे संपत्ति और स्वयं ही मालिक हुआ करते थे। बेशक इन्होंने, उदारवादी और कट्टरपंथियों ने इनकी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया लेकिन ये सुलझा नहीं सके। बात अगर हम आखिरी पॉइंट करें तो यह वह समय था जब नए शहर सामने आए और नए उद्योग क्षेत्र जो थे विकसित हुए और रेल का विस्तार हुआ और औद्योगिक क्रांति हुई। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ पर देखिए औद्योगिक क्रांति तो हुई, लेकिन कहते हैं औद्योगिक क्रांति आप करके क्या कर लोगे,
जब इस सामान को खरीदने वाला कोई देश ही नहीं रहेगा। कहते हैं वही बात हो गई ना कि कोई सामान का उत्पादन कर रहे हो तो क्या आप अपने यूज़ के लिए उत्पादन करोगे? नहीं ना। इसको अगर जब तक वो दूसरे देशों में नहीं बिकेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं खरीदेगा तो आपको आमदनी नहीं हो पाएगी। तो यही बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे कि यहाँ पर जो है ये समस्या बढ़ती यहाँ पर चली गई, जिसकी वजह से लोगों की जो है दैनिक जीवन और समाज का जो है स्थिति बिगड़ गई। तो यही बात यहाँ दर्शाता है कि यह वह समय था जब नए शहर सामने आए, यानी नए नए जो है यहाँ पर शहरीकरण किया गया, जिसके वजह से जो है नए नए शहर का जो है विकास हुआ और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए और यहाँ पर रेलों का भी विकास काफ़ी हुआ। ठीक है, रेलों का भी काफ़ी इन्होंने विकास किया और इस कारण जो है औद्योगिक क्रांति यहाँ पर हुई। तो ये सारी के सारे कंडीशन जो थे समाज में प्रभाव डाले, किसके कारण? औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण के कारण क्या समाज पे प्रभाव पड़ा, इस क्वेश्चन पे जो है हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इसके 8 पॉइंट बनाए हैं। आपको जो भी पॉइंट अच्छे लगते हैं कम से कम 5-6 पॉइंट तो आप अच्छे से याद कर लो, जो एग्ज़ाम के लिए आप जो है अच्छे से इसमें अंक ले सको। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक सब अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनका भी भलाई हो सके। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और यही त्रिपाण सेशन नहीं रुकता है, त्रिपाण सेंटर जो है 8th क्लास से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए जो है वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है। तो इसलिए सोचिए नहीं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और जो है चैनल को सेव कीजिए।